Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today, lot of announcements came about postponement of exams, and it has created confusion in the mind of candidates. What is in store for them in future? Whether bank exams will happen on time. What is the fate of SBI Junior Associate and SBI PO? And other exams in banking and insurance. Now, as far as IBPS calendar is concerned, the first exam is planned for August. That is far away. But some people were expecting exam of SBI Junior Associate in near future or before August. But with today postponement of exam planned for May, it seems that now we will not see any examination in this quarter. Till June, it will be very difficult that any board may conduct the examination. Most of the exams may be lined up from July onwards if conditions improves. As COVID situation is still not under control, and all state governments and central government is taking emergency steps to see fall in curve. That is not happening till now. Daily new cases are being reported. Even health services are unable to cope with the rush of patients that is to be treated. So now entire focus is on safety of citizen first. Even candidates, those have to undergo this examination, they are not in good state of mind these days because many families are affected and their near and dears are also affected. So they are not in good frame of mind to appear in examination. Under such circumstances, this is my own experience that says government will wait for cool off period. And that means we can safely assume that we will not see any competition exam till 30th of June. This is only a hunch. This is only a guess. No such decision is taken by anybody. Because since you are there asking this question, there is an anxiety. But my experience tells me that under present circumstances, it will be very difficult that if any board may plan exams before June now. So we have ample time. But does not mean that exams are not happening till June. We should go in a laxity mode or a mode of comfort. My advice is our role is to focus on study. Because exams can happen at short notice also. So we should always remain the exam ready. But yes, since there is a question in your mind and it is bothering you whether exams will be postponed or this will be happen on time. So my own experience and hunch says the first examination we may see beginning July provided COVID situation improves. No government or no agency will conduct the exams now in hurry because the type of COVID situation that has emerged this year is very worse than last year. So government would like to have a cool off period before examination season starts. But as a prudent candidate, you must continue your preparation. We will post the daily schedule videos daily. You should follow those schedules and take this time for your advantage that you should prepare more than other candidates so that you come victorious when examination happens. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज एक के बाद एक एग्जाम्स के पोस्टपोन की खबर आ गई है. पहले JIB की आई, फिर UPSC की आई, फिर SSC की आई और इससे काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में चिंता
छा गई है। और ये चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नौकरी चाहते हैं, और जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन को धक्का लगता है। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या बैंक के एग्ज़ाम इस बार टाइम से हो जाएंगे या लेट होंगे। देखो, अभी जो प्लान्ड एग्ज़ाम है IBPS कैलेंडर के अनुसार, पहला एग्ज़ाम अगस्त के अंदर है और नोटिफिकेशन उसका जून में आना था। तो अभी उसके ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए जैसा अभी तक लग रहा है। पर कुछ लोग स्टेट बैंक की अंदाज़ा लगा के बैठे थे कि जून से पहले शायद ये एग्ज़ाम हो जाए। पर अब की जो परिस्थिति बन रही है उसमें मुझे डाउट लग रहा है कि जून से पहले ये एग्ज़ाम कराना संभव होगा, क्योंकि मई के एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन किए जा चुके हैं और स्थिति देश की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और जो नंबर ऑफ केसेस एक्टिव हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एग्ज़ाम्स हो जाना अभी तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि जो भी एजेंसीज़ हैं वो एक कूल ऑफ टाइम चाहेंगी। जब एक ऐसा टाइम आए जब थोड़ी स्थिति नॉर्मल हो जाए और कोरोना केसेस कंट्रोल में हो जाए, तब वो एग्ज़ाम्स कराने की मनोस्थिति में होंगी। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कई रिलेटिव्स, उनके घरों में कई लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो उनकी मनोस्थिति भी ठीक नहीं है। तो ये भी बात ज़रूर दिमाग में रखी जाएगी, क्या ये वक्त ठीक है कंपटीशन कराने के लिए? क्या ऐसी मनोस्थिति के साथ कैंडिडेट अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर? ये सब विषय आएंगे। पर हमें करना क्या चाहिए? सूझबूझ क्या कहती है? सूझबूझ ये कहती है कि हमें इसमें से रिलैक्स मोड में नहीं जाना है। हमें ये नहीं सोचना शुरू कर देना अभी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, पता नहीं कब होंगे, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाएं। हमें अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है और जो ये एडिशनल टाइम हमें मिल रहा है इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है। अपनी करंट अफेयर को स्ट्रेंथन करना है, अपने उन एरियाज़ को स्ट्रेंथन करना है जहाँ पर हम कमज़ोर हैं। अभी एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज भेजा कि सर आपके बताए रास्ते पे चल के मैं उन एरियाज़ को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ जहाँ मैं कमज़ोर था। कई सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो एरिया मेरा वीक का वीक ही था, पर आपने NCERT बुक बताई, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और आज वो मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है और किसी भी तरह का क्वेश्चन मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। तो अगर आप अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, अपने कमज़ोर एरियाज़ को ढूंढते हैं और NCERT बुक से उसको कवर करते हैं, तो क्वांट में आपको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलती है। इंग्लिश में मैंने आपको ग्रामर बुक का सहारा लेने को कहा है और ये दोनों चीज़ें फ्री PDF बिना किसी कीमत के आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया, करंट अफेयर का सोर्स मैंने आपको सजेस्ट किया, इन सब का इस्तेमाल करिए और जो परिस्थितियाँ हैं उसको चुनौतीपूर्वक हमें सामना करना है, पढ़ाई करनी है और ये गलती नहीं करनी है कि हम रिलैक्स मोड में चले गए। स्थितियाँ खराब हैं और स्थितियाँ कंट्रोल में भी आएंगी और एग्ज़ाम भी होंगे। हाँ, एग्ज़ाम डिलेड हो सकते हैं, इस संभावना से भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्थिति विकट है और अभी तो मेरा ख्याल सभी सरकारों की, सभी संस्थाओं का एक ही काम है कि किस तरह लोगों की जान बचाई जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।